Hello everyone. Welcome to Clarity Mind Explains, where we make learning crystal clear. तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. So today we are going to be diving into the compelling and complex story of India's birth as an independent nation. So in this video, I'll explore the first chapter of India since independence and tackle one of the most crucial questions that what were the immediate challenges of nation building. हम सब जानते हैं कि इंडिया को आज भी challenges बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं in the contemporary geopolitics issue, whether it is the trade war with the US or the war with the Pakistan. We are dealing with crucial circumstance phases where we are bounded by variety of nations of different interests, and India in that circumstance have to preserve its own nature, own culture, and own dignity. So get ready to understand how a newly independent India, fresh from the struggles of partition and colonial rule, began to forge its own identity and future. So here we go. Challenges for the nation state. Okay, before starting, I would like to inform that the classes of the economics decoded were on a rampage. As you know, that there are only two lectures uploaded, and I think it is almost after 2 to 3 months. I was into some family issues and my personal issues as well, so could not commit to my targets. But I'll be starting from now, and all the targets will be completed and on time. इकोनॉमिक्स में हमें प्रॉब्लम ये आई थी कि इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड है. आई माई सेल्फ हैड द प्रॉब्लम टू टीच डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपका एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, उसमें ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक दिए हुए हैं जिसके अंदर मनी एंड बैंकिंग का कोई रिलेशन ना हो, बट वो फिर भी उसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल्स के तौर पे इंक्लूडेड है. चाहे वो आपको फिर कॉम्प्लेक्स इशू समझाना हो, कुछ फॉर्मूलाज हो, कुछ प्रोसेसेस हो. तो मैंने ये सोचा है कि जब हम उसका लेक्चर्स लेके आएंगे हम उनको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक आपको समझाने जाएंगे, वो चैप्टर्स आपको समझाए नहीं जाएंगे, बट वो टॉपिक वाइज डिस्कस होंगे. What we will be doing is that suppose we need to understand the what is money multiplier. So instead of taking the whole chapter of money and banking, I will be making a video, short video on what is money multiplier, how banks make money. In this way, we will be completing the chapter. So if a student wants to understand a particular topic of the selected chapter, he can easily do so by going into that playlist. So I hope that was clear. So now let us begin the next chapter. चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. ये हमारा पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है. इट विल बी नाइस एंड इजी. आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज और हार्ड होंगी, बुक्स जो आपकी हैं वो थोड़ी थोड़ी आगे जाके टफ होती जाती हैं. तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं सोचना है, चैलेंज ऑफ न्यू नेशन स्टेट. अब हम जानते हैं एट द मिडनाइट ऑफ द 14th and 15th August 1957, India attained independence. Jawaharlal Nehru was our first prime minister, and he gave us a speech on that midnight. This name you have to remember. The speech name was Tryst with Destiny. This was the moment Indians had been waiting for. We have read on in history books that there were many voices in our national movement, but there were two goals almost everyone agreed upon. हम सब जानते हैं कि हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती थी. हमें डोमिनेंस स्टेटस हमने पहले मांगना शुरू किया था इंडिया के लिए, जो धीरे धीरे बाद में आके कंप्लीट इंडिपेंडेंस और जिसको हम स्वराज बोलते हैं, हम लोगों ने वो मांगा कि जब कैबिनेट प्लान के अंडर, कैबिनेट मिशन के अंडर ब्रिटिशर्स हमें डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार हो गए थे, हमने वो रिफ्यूज कर दिया था. अब आपको पता होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस और स्वराज क्या है. देखिए, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि इंडिया को हम कुछ लेवरेज देंगे. आप जैसे कि हम देखते हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था. आप उसको डोमिनियन स्टेटस बोल सकते हैं. उसके अंदर क्या था, जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां के इंडिया के लॉज जो है वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होंगे, बट वहां की जो सिक्योरिटी है, वहां का जो कम्युनिकेशन है, वहां का जो इंटरनेशनल अफेयर्स है वो इंडिया हैंडल करेगी. तो सेम वाज दिस. इंडिया एट फर्स्ट स्टार्टेड टू डिमांड डोमिनियन स्टेटस कि ब्रिटिशर्स के ओवरऑल कंट्रोल में रहेगा बट हमारी खुद की कुछ सॉवरेनिटी होगी. नाउ व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रेडी अमंग द वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि उनको वहां पे बहुत सारे इश्यूज थे, उनके स्टॉक्स खत्म होते जा रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं और उनके हाथों से उनकी कॉलोनीज निकलती जा रही हैं. तो उस टाइम पे उनको पता था कि हमें इंडिया को अपने साइड करना बहुत जरूरी है.
अब इंडिया को अगर हम साइड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले आपकी जो मिलिट्री थी उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ पीपल वर इंडियंस, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स वर इंडियंस। एंड इंडिया से ही आपके जो थे फूड्स की सप्लाई होती थी। So it was a major setback for India, for Britishers, that India refused to get dominant status and anticipated for the complete independence। ये हम सबको पता है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था हमारी डिमांड भले बहुत सारे हों, बट हमारी दो डिमांड जो थी वो अनस्पोकन थी बट अनहर्ड नहीं थी। मतलब सबको पता था कि ये चीज तो होनी चाहिए, बट उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि ये चीज होगी। जैसे कि आप जाते हैं किसी रिलेटिव्स के साथ या शादी में, आपके मम्मी पापा आपको देखते हैं, आपको पता होता है कि हमें उनके पैर छूने हैं। अब उनको ये बोलने की जरूरत नहीं बार बार कि बेटा अंकल के पैर छू, बेटा आंटी के पैर छू। स्टिल आई डोंट गेट द लॉजिक बिहाइंड दिस, जस्ट बिकॉज दे आर एल्डर इन एज वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, बट दोस आर पर्सनल इश्यूज। सो लुक, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम लोगों ने 200 ईयर्स का ऑपरेशन झेला था। इतना तो हमें साफ साफ पता था, कोई भी गवर्नमेंट हो कैसी भी गवर्नमेंट हो, आएगी वो डेमोक्रेटिक तरीके से। नाउ इन 11th क्लास यू हैव स्टडीड व्हाट इज डेमोक्रेसी। तीन लाइंस होती थी, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो मतलब क्या था इसका, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा उसकी जो गवर्नमेंट होगी ना, वो लोग ही इलेक्ट करेंगे, वो लोगों के लिए काम करेगी, और लोगों में से ही कुछ लोग निकल के आएंगे जो गवर्नमेंट बनाएंगे। एंड टू, दैट गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड फॉर ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। और ये भी हमने पढ़ा था 11th क्लास की बुक में, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते थे हमारे, याद है आपको, कुछ फंडामेंटल राइट्स से, जिसके अंदर पता था कि हमने पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को हमने थोड़ा ज्यादा प्रिजर्वेशन दिया था। तो अब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी है, हमें फ्रीडम मिल रही है, बट फ्रीडम इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। फ्रीडम में देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपको बैक स्टोरी बताएं तो फ्रीडम जो था इंडिया का वो पहले से डिसाइडेड था टॉप अथॉरिटीज के द्वारा। टॉप अथॉरिटीज ने डिसाइड कर लिया था कि कौन से डेट को आपको इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। इट वॉज अर्लियर समवेयर बिटवीन मिड ऑफ जुलाई। अब बट उन लोगों ने डेट अनाउंस नहीं करी थी। तो मिड ऑफ जुलाई के बाद से आपका मिड ऑफ अगस्त, जो हमारा 15 अगस्त है, वो कैसे आया। मिड ऑफ जुलाई के बाद से जब आपका अगस्त आया, उसके बीच में कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेस थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसके लिए इंडिया को प्रिपेयर नहीं किया गया था, उनको पहले एडवांस में इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ये भी एक ब्रिटिशर्स की साजिश थी कि हम जितना जाएं इंडिया को जाने से पहले जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़ दें, जितनी ज्यादा इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाए, as much as it can disintegrate, as much as its people life gets shattered, will be beneficial। So जब आपका ये अनाउंस हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ आवर पहले हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाएगा 15 अगस्त से, कुछ आवर्स पहले। अब कुछ आवर्स पहले अगर ऐसा हो रहा है, मेन चीज आपने ये डिक्लेयर कर दी, बट दे डिड नॉट डिक्लेयर दैट विच पार्ट ऑफ इंडिया विल बी remaining with India and which part of India will be going to Pakistan, and same, which part of Pakistan will be remaining with Pakistan and which part of Pakistan will be going in India। तो वहां पे जो बॉर्डर्स पे लोग थे उनको डाउट था, उनको क्लियर ही नहीं था कि हम कौन से स्टेट के अंदर हैं, हम कौन सी नेशन की पार्ट बनेंगे, हम अभी इंडिया में या पाकिस्तान में हैं। उन्होंने वो डिस्कस ही नहीं करा। लाइन आपने बना दी जिसको हम सर रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, वो आपने बना दी है, बट उसको पब्लिक नहीं करा है। तो देखिए, perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than India in 1947। कैसे? In the year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. It it was in situation that independent India started on its journey to achieve several objectives. Yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new situation। हमें पता था कि जिस टाइम पे इंडिया बॉर्न हुआ है उसके बाद वो इजी पीरियड नहीं था इंडिया के लिए, वो ट्रांजिशन इजी नहीं था। उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब हम एक एक करके उन चैलेंज को पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैलेंज क्या था? द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हम एक ऐसा नेशन बनाए जो कि यूनाइटेड हो। यूनाइटेड कैसे? जब ब्रिटिशर छोड़ के गए थे इंडिया, उन्होंने पता है क्या करा था, उन्होंने एक शर्त रखी थी या फिर एक तरह से ऑर्डर निकाला था कि हम इंडिया छोड़ेंगे, इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या है, दोज विच वर गवर्न बाय द प्रिंसेस और द रूलर्स, राजास, प्रिंसेस,
इन सब के द्वारा जो गवर्न किए जाते थे उनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट भी थे जो अपने आप को प्रिंस से एसोसिएट नहीं करते हैं बट फिर भी एक इंडिपेंडेंस होने मानते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, इनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है। ये चाहे तो ये पाकिस्तान के पास जा सकते हैं, ये चाहे तो ये इंडिया के साथ रह सकते हैं, या फिर ये दोनों के साथ ही ना जाए, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दें। अब आप सोच के देखिए, जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो मैप है आप सब उसको जानते हैं। सपोज दैट नाउ बिहार सेज दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आप सोचिए कितना फिजिबल होगा। पाकिस्तान कहाँ पे है, बिहार कहाँ पे है, बीच में इंडिया के इतने सारे स्टेट्स आते हैं। तो हाउ विल द कम्युनिकेशन हैपन, हाउ विल द ट्रांसपोर्टेशन हैपन, बाय एयर, बाय हाईवेज, हाउ? इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसीलिए हम जब देखते हैं ना कि एक नेशन होता है उसकी जो बाउंड्री होती है वो बहुत ज्यादा कॉन्सोलिडेटेड होती है, मतलब बहुत ज्यादा पास पास होती है, उसके बीच में इतना गैप नहीं होता है। एंड येट ब्रिटिशर्स वर सक्सेडेड। हाउ? अगर ये इंडिया का मैप है, ब्रिटिश ने क्या करा था, यहाँ पे पाकिस्तान बनाया, यहाँ पे भी पाकिस्तान बनाया। दिस वॉज कॉल्ड द वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वॉज कॉल्ड द ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये सब तो आप जानते हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं अपने इस काम में सक्सेसफुल भी हुए हैं। अब नाउ देखिए, सबसे पहला चैलेंज था कि हम एक ऐसा नेशन बनाएं जो यूनाइटेड हो, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया के अंदर अकोमोडेट करें, बट ऑन द सेम हैंड यूनाइटेड हो, बट ऐसा भी हो कि वो जो डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर उसको भी यूनाइटेड रखे। यूनाइटेड नॉट इन द सेंस ऑफ बाउंड्री और इन द सेंस ऑफ लैंड ऑन लैंड, बट इन द सेंस ऑफ कल्चर, इन द सेंस ऑफ रिलीजन, इन द सेंस ऑफ सोसाइटी एज वेल, कि पीपल भी यूनाइटेड हो इंडिया के, ना कि सिर्फ और सिर्फ लैंड। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कंटिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। Its people spoke different languages and followed different cultures and religions. At that time, it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. ये पास्ट एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, जिन्होंने देखा था कि जब इतनी ज्यादा एथनिसिटी होती है, when there are different types of religions, different types of customs, different type of culture, a society cannot stay united for too long. ये एक पहले से देखी हुई चीज थी, पहले से परखी हुई चीज थी, बट इंडिया आज हम देख रहे हैं आजादी के इतने सालों बाद भी 70+ ईयर्स हो चुके हैं हमको, और अभी हम देखते हैं कि इंडिया स्टैंड एज यूनाइटेड एज इट वाज बिफोर। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर्ड टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर्स। और पार्टीशन ने इसी फियर को सबसे ज्यादा प्रूव कर दिया था। क्यों? अब आप पाकिस्तान बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है ना कि मुस्लिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बॉर्डर्स पे रहते हैं जहाँ पे पाकिस्तान बनने वाला है। इंडिया के सेंटर के अंदर आप यूपी देखते हैं, उसमें भी बहुत मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम। उनका क्या होगा? अब वो यूनाइटेड कैसे रहेंगे जब वो डिफरेंट कल्चर्स के हैं? ये फियर भी था। देयर वाज सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री? Would it do so by emphasizing nationality at the cost of every other objective? Would it mean rejecting all regional and sub-regional identities? And there was an urgent question: how was the integration of the territory of India to be achieved? तो ये हमारा फर्स्ट चैलेंज था कि हम यूनाइटेड कैसे रहेंगे इंडिया जब पार्टीशन हो जाएगा। द टू वर्ड्स, बीइंग अपार्ट एंड बीइंग यूनाइटेड, आर टू अपोजिट पोल्स। इन दोनों को अब हमें कैसे करना है, क्योंकि पार्ट तो हम हो चुके हैं अपार्ट, वी आर बीइंग अपार्ट। अब हमें देखना है कि हम यूनाइटेड कैसे रहते हैं उस टाइम के अंदर। सो here comes the second question. And what was the second question? See, the second challenge was to establish democracy. अब हमें democracy establish करनी है। As we read above, there were two unspoken things about India, that it was going to be a democratic country. You have already studied the Indian Constitution. You know that the Constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम सबको पता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जिसके अंदर लोगों के अंदर से ही कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल निकल के आएंगे जो उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस मतलब लोग जो है वो डायरेक्टली रूल नहीं करेंगे। एज फार एज वी नो दैट इंडिया पॉपुलेशन इज इफ इट इज 140 करोड़, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉलिसी that 140 crore people approve of। 140 crore people, suppose, choose 500 persons among themselves and give them the authority that you choose on our behalf. We trust you. What will you do will be the best for the country. These features ensure that the political competition would take place in the democratic framework. A, a democratic constitution is necessary, but not sufficient. Remember that. A democratic constitution is necessary, but not sufficient.
फॉर इस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं, वेदर इट्स इन चाइना, वेदर इट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे साथ ही बना था। बट क्या अभी वो डेमोक्रेटिक है? क्या बांग्लादेश अभी डेमोक्रेटिक है? नहीं है। तो ये याद रखना है कि द मेकिंग ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन और एस्टेब्लिशिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोल क्राइटेरिया ऑफ ग्रांटिंग दैट डेमोक्रेसी विल बी established there. And the third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections. ये याद रखना है कि जो हमने क्लास ऑपरेशन करा है इन द एंटायर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कास्टिज्म है, जो अनटचेबिलिटी है, उसको भी हमें साथ साथ दूर करना है। क्योंकि इस टाइम पे आप देखेंगे कौन एक प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत आवाज उठाई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो रिमेंबर दिस नेम एज व्हेन यू राइट अबाउट द थ्री चैलेंजेस। तो आप चैलेंज के बारे में जब लिखेंगे उसके साथ साथ अब अगर आप एक नेम मेंशन करते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रोफाउंडली फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द अनप्रिविलेज्ड, सो आपके मार्क्स गेन होंगे। Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and separation, special protection of socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. So अब हम देखते हैं कि हम फर्स्ट चैलेंज जो है हमारा इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ इसी फोकस करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट चैलेंज था क्या, नेशन बिल्डिंग का, उसको कैसे प्रोसेस किया गया, उसको कैसे पूरा एक एंटायर फंक्शनिंग तौर पे स्टार्ट किया गया। We begin by looking at the events formed in the context of independence. This can help us understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of independence. We shall then see how India chose to shape itself into a nation united by a shared history and common destiny. This unity had to reflect the aspirations of people across the different regions and deal with the disparities that existed among regions and different sections of people. तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पेजेस आपके, ये कटिंग्स हैं, पेपर कटिंग्स अलग से। या तो हम क्या करेंगे, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इफ यू वांट these special things to be addressed, so we will make a different video for these. We will make a separate video for every chapter for the paper cuttings, special quotes, quotations and any other cartoon diagram images, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कई बार। तो इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे, बट अभी हम इनको चैप्टर के साथ एड्रेस नहीं करेंगे। सो हम देखते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? जिन लोगों को अपनी जगह से हटाया गया था, एंड रिहेबिलिटेशन, जिनको हटाया गया उनको वापस बाद में वहां पे कैसे रिहेबिलिटेट किया गया। सो ऑन द 14th and 15th August 1947, not one but two nations came up in the existence, इंडिया एंड पाकिस्तान। आप जानते हैं पाकिस्तान को 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस मनाते हैं और इंडिया में 15 अगस्त को। This was the result of partition, the division of British India into India and Pakistan. तो जो एंटायर ब्रिटिश इंडिया था उसको दो पार्ट्स में बांटा गया। पहले ये ब्रिटिश इंडिया था, इसको दो पार्ट्स में बांटा, क्या, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये आपको पता ही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, the drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments that you have read in the history textbooks. According to the two nation theory advanced by the Muslim League, Muslim League क्या थी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल पार्टी थी which represented the Indian Muslims as far as they said. India considered of not only one but two people, Hindus and Muslim. तो मुस्लिम लीग ने क्या थ्योरी दी थी कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग हैं, या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है, एंड विच इज कंप्लीटली नॉट ट्रू। क्या ऐसा है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही है? नहीं ना। एंड दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग का सिर्फ एक जो सोल क्राइटेरिया था, जो एक सोल बेस था ऑन विच दे डिमांडेड सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, was that there are only two communities in India, Hindus and Muslims. So we need a separate country for Muslims, a separate country for the Muslims. The Congress opposed this theory and demand for Pakistan, but several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision of the creation of Pakistan. But 1930s और 40s के अंदर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से मुस्लिम लीग की ये डिमांड फुलफिल करनी पड़ी। अब वो क्या क्या थी?
जब आप देखेंगे कि हमारे जो 1935 में इलेक्शन हुए थे, 37 के आसपास जो इलेक्शन हुए थे, उसमें हम देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग थी वो अलग से मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट्स के ऊपर खड़ी हुई थी। और मेजोरिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% टू 95% ऑफ द सीट्स ऑफ द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर born बाय द मुस्लिम लीग पार्टी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारे बहुत सारे प्लान्स आए थे, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन एक्सेट्रा, तो हम देखेंगे जब मुस्लिम लीग थी उसने कभी भी इंडिया का डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट नहीं किया until unless they are separated, they are provided by the separate country पाकिस्तान। एंड जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बनी थी, तब भी आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग ने पहले इलेक्ट तो किया अपने मेंबर्स। ऑलमोस्ट 93 टू 99 मेंबर्स वर देयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एक्चुअल फिगर, बट इस रेंज के अंदर वो थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भी उनके 93 टू 99 मेंबर्स थे। बट जब ये पार्टीशन हुआ, तब वो लोग भी चले गए। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 प्लस सीट्स वर वेकेंटेड बाय द मुस्लिम लीग एज वेल। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बट वो कभी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा उसके अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से ये मुस्लिम लीग और इंडिया, जो हमारी आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन दोनों पार्टीज के बीच की दूरी बढ़ती रही। एट दैट टाइम इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय द आईएनसी। तो अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कैसे था, पार्टीशन हुआ कैसे था। सो thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, namely India and Pakistan. Such a division was not very painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majorities. तो अब डिसाइड करना है उसका एक क्राइटेरिया क्या लिया गया, व्हाट वर द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर दिस एरिया बिलोंग्स टू इंडिया और वेदर दिस एरिया बिलोंग्स टू पाकिस्तान। इट वाज द रिलीजियस मेजोरिटी। व्हाट इज इट? It was said that where a majority of people lives, suppose it is the community of Muslim, so then it will be declared as a Pakistan. And if there is a territory in between India where there is a majority of people are Muslims, then it will also be declared as India. Oh, sorry, Pakistan. So this religious majority criteria was established, means that areas where the Muslim were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. The idea might appear simple, but it presented all kinds of difficulties. अभी ये दिखने में सिंपल लग रहा है, बट ये डिफिकल्ट है। किस लिए? सबसे पहले आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई एरिया मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर होगा? इट वॉज नॉट एट ऑल फिजिबल। इट वॉज नॉट इवन द केस दैट ऑल द मुस्लिम्स लिव अलोंग साइड द बॉर्डर ऑफ इंडिया, which we see to nowadays. First of all, there was no single belt of Muslim majority areas in British India. कि single belt नहीं था. It was not that all the Muslims, suppose this is India and this is Pakistan of now. This was not the case that this line represents the border of India Pakistan and all the Muslims live in this shaded area. This was not the case. मान लीजिए कि इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर है आज के टाइम की। So this was all the case that there also some people with the Muslim majority area, they also live there. Even there are some people of the Muslim majority area. Even there are some people of the Muslim majority area. So how are you going to decide which will be the part of Pakistan and which will be part of India? एक आपका एक consolidated एरिया ही नहीं है। And even after that, it was decided that this Pakistan and this will be the Pakistan. Suppose that कि उस टाइम पे उनकी क्या ही सोच थी। So there was no way these two parts could be joined. ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था जिसके इन दोनों को ज्वाइन कर लिया जाए। कैसे आप कहेंगे रोड बना दे? हाउ इज इट पॉसिबल? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड अगर हम दो कंट्रीज को अपनी कंट्री के बीच रोड निकाल के देते हैं, पर्टिकुलरली आवर कंट्री इज ओनली डिवाइडेड, वहां से कितने ज्यादा टेररिस्ट आ सकते हैं, वहां से कितने ज्यादा लोग जो है वो इलीगल इमिग्रेंट बन सकते हैं, आपके नेशन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है इससे। सो इट बी डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान will comprise two territories, West and East Pakistan. तो ये दो टेरिटरीज को वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान बोला गया, separated by a long expanse of Indian territory. Now, second problem was not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Obviously, this can be the case that even if you are a Muslim, you are not willing to go to the Pakistan. This can be absolutely true. Remember the name Khan Abdul Ghaffar Khan. This has been asked in your PYQs. Who was known as the Frontier Gandhi? So the answer is Khan Abdul Ghaffar Khan. Frontier Gandhi means as the Gandhi, he also always on the front, particularly in the Muslim areas, to unite India and Pakistan, to not let partition happen.
The undisputed leader of Northwest Frontier Province and known as the Frontier Gandhi was staunchly opposed to the two nation theory. Eventually, his voice was simply ignored by the NWP was made to merge with Pakistan. The third problem of this. So we are now dealing with the problems of partition, and in the subcontext, we are dealing with the particular इंडिया एंड पाकिस्तान जो रिलीजियस मेजोरिटी से सेपरेट होना है उसकी भी हमने थ्री प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं क्या पहले तो एक सिंगल बेल्ट नहीं था सेकेंडली नॉट ऑल मुस्लिम wanted to be पाकिस्तान एंड नाउ द थर्ड प्रॉब्लम was that मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो प्रॉब्लम बन रही थी कौन कौन सी टुडेस पंजाब एंड बंगाल यस टुडेस पंजाब also considered of a lot of millions of Muslims at that time and at the same time the Punjab that is in Pakistan yes Punjab has Pakistan has Punjab also that Pakistan considered of lots of Sikhs there so how will you gonna relocate them and today's Bengal we see majority of Bengal population is Muslim so how we are going to unite them as well so Punjab and Bengal had very large areas where the non-Muslim were in majority. Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated along the religious majority at the district or even lower level. तो इनको क्या किया गया डिसाइड कि इनको डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल्स तक बाइफरकेट करेंगे हम कि डायरेक्टली ऐसे नहीं कि मैप पे देखा और एक लाइन बना दी अच्छे से देखेंगे तो कैसे बाइफरकेट करेंगे सपोज करिए ये आपका एरिया है पंजाब का अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने ये लाइन बनाई सपोज करिए ऐसे करके इस साइड जो है आपके सारे के सारे मुस्लिम रहते हैं इस साइड आपके सारे के सारे हिंदू रहते हैं क्योंकि इन हिंदू लाइंस के ऊपर हो रहा है अब मान लीजिए इस साइड पे हिंदू रहते हैं अगर आप ऐसे डायरेक्ट लाइन खींच देते तो उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे ना जो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे जो अपने अपने अलग अलग एरिया में आ गए बट डिस्ट्रिक्ट वाइज तक जाके हमने डिसाइड करा तो हमने देखा कि इस लाइन को अब इधर एक्सटेंड करना पड़ रहा है बिकॉज इस लाइन में हिंदू रहते हैं और हमें मुस्लिम वाले एरिया को भी यहाँ तक लेके जाना पड़ रहा है देखिए लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है बट द लाइन गोes here. So what this means? This means that Muslims also live there. So we cannot merge them into India as well. So this was decided that on the district level, the line will be bifurcated. The decision could not be made by the midnight of 14th to 15th August. The decision independence के day तक नहीं बना था. It meant that large number of people did not know on the day of independence whether they were in Pakistan or in India. The partition of these two provinces caused the deepest trauma of partition. This was related to the fourth and the most intractable of all the problems of partition. और जो सबसे major problem थी हमारी our major problem was when the midnight of 14th and 15th August happened. A large scale, whether you say murder, whether you say mob lynching, whether you say rape, there was not a single crime that was not committed at that night. This was the problem of minorities on both the sides of the border. Minorities. What do you mean by minorities? अब हमने ये लाइन जो खींची है सपोज करिए अब इस ये जो लाइन है ये क्या इतनी स्ट्रिक्ट हो सकती है कि इसके इधर कोई भी हिंदू नहीं होगा सॉरी इसके इधर कोई मुस्लिम नहीं होगा और क्या ये इतनी स्ट्रिक्ट हो सकती है कि इसके इधर कोई भी हिंदू नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता ना यहाँ पे भी कुछ हिंदू हो सकते हैं यहाँ पे भी कुछ मुस्लिम हो सकते हैं तो हम इनको कैसे रिलोकेट करेंगे दे वर द माइनॉरिटीज इन दैट एरिया और सबसे ज्यादा ऑपरेशन था वो इन्हीं के साथ हुआ था क्यों अब ये लोग एक हिंदू मेजोरिटी एरिया में हैं एंड दीज आर मुस्लिम्स The partition was so brutal over all the people of the country that these minorities will get killed. And here also some minorities were there. Let's see. Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan and an equally large number of Muslims on India, both sides of Punjab and Bengal, found themselves trapped. अब वो लोग अपने आप को trapped feel कर रहे थे. They were to discover that they were undesirable aliens in their own home. Yesterday, which was their homeland, now is a foreign territory. कल रात तक जो लोग अपने इंडिया में थे आज वो एक फॉरेन नेशन का पार्ट बन चुके हैं कि अगर उनको कोई बोले भाई साहब आप आज रात को जब हम सोए थे तब तो इंडिया में थे आज सुबह उठे तो अब ये पाकिस्तान बन चुका है लोगों को खबर ही नहीं थी कि वो कौन से स्टेट के अंदर जाने वाले हैं इन द लैंड वेयर दे हैड देयर एंसेस्टर्स लिव्ड फॉर सेंचुरीज जहां पे उनके एंसेस्टर्स सेंचुरीज तक रहे हैं अब ये लैंड उनके लिए एक एलियनेटेड लैंड बन चुकी है as soon as it became clear that the country was going to be partitioned the violence started at an unprecedented level against communities who were lesser in number in their respective areas. No one had quite anticipated the large scale of this problem. No one had any plans for handling this. Initially, the people and the political leaders.
kept hoping that this violence was temporary but would be controlled soon. इनिशियली सबको लगा था कि ये एक ही या 2 दिन रहेगा वायलेंस, उसके बाद में सब कुछ शांत हो जाएगा, बट दैट डिड नॉट हैपन. इवन months, for months this mass killing, this mob lynching goes on. तो आप देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे पार्टीशन के. व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन? The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population in the human history. एक तरह से ट्रांसफर ही था पॉपुलेशन का. As you can see in the image, people were sitting above the trains to get to their home country. There were killings and atrocities on both sides of the border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of other community. Cities like Lahore and Amritsar and Kolkata became divided into communal zones. Muslims would avoid going to an area where mainly Hindus or Sikhs lived, and similarly, Hindus and Sikhs stayed away from the areas of Muslim predominance. Obviously, it was going to happen. सो अब हम देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे पार्टीशन के. अब मैं सिर्फ वही चीज हाईलाइट करूंगा जो आपके नोट्स बन सकते हैं. तो आप वो चीज नोट्स के अंदर लिखिएगा, एक हेडिंग बनाइए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, एंड राइट डाउन दोस थिंग्स. तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी है? Killings and atrocities on communities ruthlessly killed and maimed people of their other communities. ये चीज आप ना भी लिखें तो भी आपके लिए सही है, क्योंकि ये बस एक एक्सप्लेनेशन है. People were forced to abandon their homes and move across borders. People went on immense sufferings. Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. There was refugee camps where millions of people live. रेफ्यूजी कैंप्स क्या होते हैं? एक टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है आपको, टेंट लगा के कुछ खाना वाना दे देते हैं. वहां पे भी इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होती ऑब्वियसली. एक छोटे से एरिया के अंदर जब मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग रहते हैं, वहां पे सैनिटेशन का इशू आता है, वहां पे क्लीन वाटर का इशू आएगा, वहां पे फूड आपको अच्छे से अवेलेबल नहीं होगा. आपके झगड़े हो सकते हैं. अगर आप देखें आपके आपके साथ वाले टेंट में कोई दूसरी कम्युनिटी का इंसान रह रहा है और आपको पता है कि इस कम्युनिटी की वजह से मुझे इमेंस सफरिंग झेलनी पड़ी है. सपोज करिए इंडिया के अंदर कोई कैंप लगा हुआ है और वहां पे इंडियंस रह रहे हैं. अब वहां पे अगर कोई एक मुस्लिम पर्सन रह रहा है, ऑब्वियसली द हिंदूज विल गोइंग टू हेट देम, सो वो उनको मारेंगे. एंड सेम गोज विद द पाकिस्तान. So they often found helpful local administration and police in what was still recently their own country. They traveled to the other side of New Border by all sort of means, often by foot. तो उनको पैरों से भी ट्रेवल करना पड़ा था. Thousands of kilometers people walked on foot. Even during this journey, they were often attacked. तो जर्नी के अंदर उनके ऊपर अटैक होता था, किल होता था और रेप होता था. Thousands of women were abducted. हजारों वुमेन्स को abduct कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था. They were made to convert to the religion of the abductor and were forced to into marriage. जो उनको किडनैप करता वो उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करता और उनसे शादी कर लेता. In many cases, women were killed by their own family member to preserve the family honor. आप सोच के देखें कि वो ब्रुटलिटी कितनी ज्यादा होगी कि उनके खुद के ही घर वाले, उनके खुद के पेरेंट्स अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को मार रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर फैमिली ऑनर. कि अगर इसको नहीं मारा, ये हमारे साथ रहे, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी सम पर्सन हु इज गोइंग टू किडनैप हर एंड हु इज गोइंग टू मैरी हर और हु इज गोइंग टू रेप हर. This was the level of atrocity which were done at the time of independence. Many children were separated from their parents. Those who did manage to cross the border found that they had no home. और जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस भी कर लिया उनका तो घर वहां पे है ही नहीं ना, क्योंकि वो पीछे छोड़ के आ गए हैं. फॉर lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camp. लाखों लोगों के लिए अब लाइफ यही रह गई थी उनकी, that they live in the refugee camp for years and years, for months and sometimes few years. Writers, poets, filmmakers in India, Pakistan have expressed the ruthlessness of killing and the suffering of the displacement violence in their novels, short stories, poems, and films. While recounting the trauma of the partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as division of hearts. तो आप ये लाइन अपने आंसर के इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, that partition was not only the division of land or border, it was the division of hearts. The partition was not merely division of properties, liabilities, and assets, or a political division of the country and the administrative apparatus. What also got divided? ये आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपके एसेट्स, घर, लैंड, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें डिवाइड नहीं हुई थी. डिवाइड क्या हुआ था? आपके फाइनेंशियल एसेट्स, टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप एंड इवन बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक आपके जो थे वो डिवाइड हुए थे कि अब ये पाकिस्तान का सामान है और ये इंडिया का सामान है.
पुलिस बैंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक डिवाइड हुए थे। The employees of the government and the railways were also divided. Above all, it was a violent separation of communities who hitherto lived together as neighbors. It is estimated that partition forced about 80 lakh people to migrate across new border. अराउंड 80 लाख पीपल जो थे वो माइग्रेट करे थे। तो आपको आंसर में लिखते टाइम क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक अगर आप कोट लिखते हैं तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेंगे, जरूर करेंगे। नेक्स्ट आपको ये कुछ जो नंबर्स है ना वो याद रखने हैं हर आंसर के लिए। जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल, जितने ज्यादा आप स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करेंगे, द एग्जामिनर इज गोइंग टू थिंक यस द पर्सन, द स्टूडेंट हैज डीपली स्टडीड द टॉपिक, हैज डीपली स्टडीड द चैप्टर, so you are absolutely going to face extra marks. There is no hard and fast rule about getting extra marks. This all can be done by giving attention to these small details. I myself got 97 marks in the political science, and without even any coaching, without any going to any YouTube videos. At that time YouTube videos were not even there for particular chapters. I knew, I think there was some teacher called Aman Dhattarwal. I think he now teaches the IITians. There was a one chapter about him of the world contemporary world politics books of the era of Cold War. I used to watch that video multiple times. It was an interesting video. You can also watch that. I recommend a good teacher always. अगर आपसे कोई बेटर है तो आप उनको जरूर बताइए कि वो मुझसे बेटर है, आप उनको देखिए। हो सकता है मेरे समझाने से आपको 10 मार्क्स का समझ आए, बट उनके अगर आपको समझाने से 12 मार्क्स का आता है समझ, देन इट इज ए गुड थिंग। तो आप उनका वीडियो देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, सो लेट्स फोकस। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड। आप सोच सकते हैं नंबर कितना है, 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। 5 to 10 लाख पीपल इज नॉट अ लेस नंबर। कुछ कुछ कंट्रीज की तो पॉपुलेशन होती है 5 to 10 लाख, कुछ कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन होती है। नाउ बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, हाउएवर, द partition posed another deeper issue. The leaders of the international struggle did not believe in two-nation theory, and yet partition on religious basis had taken place. Did that make India a Hindu nation automatically? अब ये देखना क्या है कि पार्ट इंडिया के जो लीडर्स थे वो तो बिलीव ही नहीं करते थे टू नेशन थ्योरी पे। वो थ्योरी तो आपकी मुस्लिम लीग की थी। तो अब क्या इसका ये मतलब है, जो टू नेशन थ्योरी थी वो यही कहती थी कि इंडिया दो रिलीजन से मिलकर बना है, हिंदू एंड मुस्लिम। तो अगर एक पाकिस्तान नाम की कंट्री अब बन चुकी है with the Muslim majority, does that make India automatically a Hindu dominated country or a Hindu country? Even after the large scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12 to 10%. तो मतलब क्या है, जब पाकिस्तान क्रिएट हो चुका है, इवन द इन द वेस्ट एंड इन द ईस्ट देयर आर स्टिल 10 to 12% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट इज मुस्लिम डोमिनेटेड। मुस्लिम माइनॉरिटी आपकी अभी भी 10 to 12% है। So, how would the government of India treat its Muslim citizens and other religious minorities? उस टाइम पे और कौन कौन सी थी, सिख थे, क्रिश्चियंस थे, जैन थे, बुद्धिस्ट, पारसी, ज्यूस। अब आप इनको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या आप एक हिंदू नेशन मानेंगे आप? सो ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे इसके पीछे। द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इन कॉलोनियल इंडिया। इट वाज इन फोरफ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम नेशन। आपको मैं बता दूं कि आपका आंसर है ना यहाँ पर खत्म हो गया है। ये जो आपने लिखा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, ये आपके यहाँ पर खत्म हो गए हैं। तो आपको देखिए बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे इसके अंदर से। मैं एक गाना देता हूँ आपको। किलिंग्स हुई थी आपकी, किल्ड एंड मेम्ड ऑन द पीपल ऑन द अदर कम्युनिटी। आपको अबेंडन करने पड़े थे फोर्सफुली अपने होम, माइनॉरिटीज के अब हर जगह टेम्परेरी शेल्टर में रहना पड़ा था, ट्रैवल करना पड़ा था ओपन बाय फुट, वुमेन का रेप हुआ था, किल्ड हुआ था, अबडक्टेड हुई थी, रिलीजन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा था फोर्सफुली, मैरिज के अंदर जाना पड़ा था, फैमिली ऑनर के नेम के ऊपर कुछ लोगों ने अपने ही बच्चों को मारा था, और रेफ्यूजी कैंप के अंदर सेटलमेंट करनी पड़ी थी। नोवास के अंदर डिवीजन ऑफ हर्स इसको कहा गया था। अबाउट 80 लाख पीपल वर माइग्रेटेड एंड 5 to 10 लाख वर किल्ड। ये सारी आप चीजें लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन के अंदर। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट थिंग। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल irrespective ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। तो डिसाइड क्या हुआ था कि इंडिया एक हिंदू कंट्री नहीं है, इंडिया एक हिंदू कंट्री नहीं बनेगा। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल irrespective ऑफ द रिलीजियस एफिलिएशन।
सारे सिटीजन इक्वल हैं, डजेंट मैटर टू विच रिलीजन यू adhere to which religion you believe in. They cherish therefore the ideal of secular nation. The ideal was enshrined in the Indian constitution. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे हुआ था प्रिंसली स्टेट्स का. सो ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड, British India was divided into what were called British Indian provinces and princely states. So what we can do is we can end the chapter here and we can start the chapter in the part 2 with named integration of princely states. Let me know in the comment box that आपको एक चैप्टर एक साथ चाहिए या फिर आप चाहते हैं उसको दो पार्ट्स में रिलीज किया जाए. Today I'm going to finish the whole chapter since I've started this, but from the next video I'll be on your opinion only that what we should do with these chapters. So let's begin. The British Indian provinces were directly under the control of British government. तो ये क्या कह रहे हैं? देखिए, ये है आपका ब्रिटिश इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो तरह की प्रोविंसेस थी. क्या थे? एक को तो बोलते थे हम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द अदर वाज प्रिंसली स्टेट्स. ये दो नाम से आपके प्रोविंसेस होती थी. अब ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस क्या है? विच वर गाइडेड एंड विच वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स ओनली. कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल है, सारे रूल सारे लॉज ये बनाएंगे, यही डायरेक्टली रूल करेंगे. एक थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स में क्या था? इनके जो हेड थे ना वो कोई प्रिंसेस या राजा थे जो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को एक हेफ्टी सम ऑफ अमाउंट पे करते थे यहाँ पे रूल करने के लिए, कि हमको यहाँ पे रूल करने दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए होगा हम आपको एक ईयरली रुपीस कुछ देते रहेंगे. आपका जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो आपका हमारी टेरिटरी के ऊपर रहेगा, बट आप एक नॉमिनल रूलर हमें बना के रखिए. ये वो होते थे. तो देखिए, on the other hand, several large and small states were ruled by princes. These are called princely states. Enjoyed some form of control over their internal affair as long as they accepted British supremacy. तो princely states के साथ क्या था कि उनको कुछ कंट्रोल दे दिया जाता था, इंटरनल कंट्रोल ऑफ देयर इंटरनल अफेयर्स, as long as they adhered to British supremacy. This was called paramountcy of British crown. Princely states covered one third of the land area of the British Indian Empire. Princely states, according to land area, covered almost one third of the land of India, and one out of four Indians lived under princely rule. तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि इन प्रिंसली स्टेट्स को हम यूनाइट कैसे करें इंडिया के साथ में, ऐसा क्या करें कि ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी आगे, ब्रिटिशर्स क्या कहने वाले हैं कि आप लोग ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके पास तीन ऑप्शन है. आप या तो इंडिपेंडेंट रह लीजिए, आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए. तो देखिए, just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of British crown over princely states would also lapse. कि जैसे ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे उनके जो पैरामाउंट है, उनका जो अथॉरिटी, उनकी जो रूल है प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो भी उनके साथ चली जाएगी. दैट मीन ऑल प्रिंसली स्टेट्स एज मेनी एज 565, ये नंबर आपको याद रखना है. देयर वर 565 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट. तो जैसे ब्रिटिशर्स जाएंगे अब वो प्रिंसली स्टेट जो है वो लीगली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दी स्टेट्स वर free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wish. This decision was left not to the people but to the princely rulers. अब ये भी आपको याद रखना है कि ये डिसीजन जो था कि आपको इंडिया के साथ रहना है, आपको पाकिस्तान के साथ रहना है, या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है, वो रूलर्स के ऊपर छोड़ा गया था, ना कि लोगों के ऊपर. कि ऐसा नहीं है जो लोग चाहेंगे वो होगा, बट जो रूलर चाहेंगे वही होगा. This was a very serious problem and could threaten the very existence of a united India. So the problem started very soon. First of all, the ruler of Travancore announced that the state had decided to own independence. एक स्टेट है आपका त्रावणकोर. The next was the Nizam of Hyderabad made a similar announcement the next day. जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त को, इन्होंने 16 अगस्त को कह दिया. त्रावणकोर के हेड जो रूलर था उसने, निजाम जो था हैदराबाद का, वो निजाम भी रूलर ही है, बस उसको डिनोट करते हैं. जैसे हम किसी को महाराजा बोलते हैं, महाराजा धीराज बोलते हैं, और जैसे ही एक आपका जो है वो एक एक्रोनियम है आपका
Nizam. Rulers like Nawab of Bhopal were averse to joining Constituent Assembly. The response of the rulers of the princely state meant that after independence there was very real possibility that India would get further divided into number of small countries. तो ब्रिटिशर्स क्या करके गए? पाकिस्तान और इंडिया को तो डिवाइड करा ही, बट साथ में एक पॉसिबिलिटी भी ऐसे छोड़ गए कि इंडिया और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट सकता है। कि हैदराबाद, सपोज करिए हैदराबाद इंडिया का एक सेंटर में एक बहुत बड़ा चंक है लैंड का, अगर वो चला जाता तो आज इंडिया के बीच में एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती। The prospectus of democracy for the people in these states also looked bleak. This was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination, as well as democracy. In most of these princely states, government were run in a non-democratic manner, and the rulers were unwilling to give democratic rights to their population. तो अब देखते हैं इसको लेके गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही थी, कि गवर्नमेंट ने इसको कैसे टैकल करा, कि प्रिंसली स्टेट्स को हम यूनाइट कैसे करेंगे। द interim government took a firm stance against the possible division of India, small principalities of different sizes under Mountbatten plan। तो माउंटबेटन प्लान जो आया था उसके अंडर इंडिया ने ये डिसाइड करा था कि हम प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। द प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। तो अब आपको नेम जो याद रखना है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। Was India's deputy prime minister and home minister during the colonial crucial period immediately following the independence. He played a historic role in negotiating with the rulers of the princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into Indian Union. It may look easy now, but it was a very complicated task which required skillful persuasion. For instance, there were 26 small states in today's Odisha। तो आज का हम जो एक उड़ीसा स्टेट देख रहे हैं, जो छोटा सा एक स्टेट है, उस टाइम पे उसके अंदर छोटे छोटे टोटल 26 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब किसी ना किसी इंसान को उन सब स्टेट्स को जाके समझाना है कि आप इंडिया के अंदर ज्वाइन कीजिए। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। सौराष्ट्र रीजन जो गुजरात का रीजन है had 14 big states and 119 small states and numerous other different administrations। तो आज का गुजरात है, उसके अंदर 14 तो बिग स्टेट्स थे और 119 स्मॉल स्टेट्स थे। इन सबको आपको मनाना है कि आप लोग पाकिस्तान के साथ ज्वाइन मत कीजिए, आप ना तो इंडिपेंडेंट बनिए ना पाकिस्तान के साथ जाइए, आप इंडिया के साथ आइए। तो कितना कॉम्प्लेक्स और कितना डिफिकल्ट टास्क है ये आप नंबर से ही देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रोच वो गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशन। तो गवर्नमेंट की अप्रोच होती है वो थ्री कंसिडरेशन से चली। फर्स्टली, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सबसे पहले आपका इजी टास्क क्या रहा कि ऑटोमेटिकली ही बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे, तो ज्यादा आपकी प्रॉब्लम नहीं आई। सेकंड, गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। जो कि हमने देखा था जम्मू कश्मीर के रीजन में, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, कि गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल थी कि अगर आप पार्ट नहीं बनना चाहते हैं तो हम आपको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे सकते हैं, बट आप पार्ट फिर भी बनिए, कि आप डिसाइड कर पाएंगे अपने कुछ जो नॉर्मल इश्यूज हैं जो एक नॉर्मल स्टेट कर पाएगी उससे ज्यादा हम आपको इंडिपेंडेंस और फ्रीडम देंगे। The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the region. Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. So, before 15th August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of the India into the Indian Union. The rulers, most of the states signed a document called the Instrument of Accession। अब आपको इस डॉक्यूमेंट का नेम भी याद रखना है, विच वाज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को एक्सेस करते हैं और किसी के अंडर में आ जाते हैं, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि हम साइन कर रहे हैं, वी आर willingly signing the declaration that we are going to be a part of India, which meant that the state agreed to become a part of Indian Union. Accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad and Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest। तो ये चार स्टेट्स थी जिनका जो इंटीग्रेशन था वो बहुत डिफिकल्ट तरीके से हुआ था, बाकी सारे इजीली हो गए थे। तो अब पहला जूनागढ़ का इशू जो रिजॉल्व था वो प्लेबिसाइट के थ्रू कंफर्म कर लिया गया था। प्लेबिसाइट क्या होती है? कि हम वहां के लोगों से वोटिंग करवाएंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ में। तो सब लोगों ने जब 90% मेजोरिटी ने इंडिया के लिए वोट किया तो ऑटोमेटिकली इट वाज डिसाइडेड दैट जूनागढ़ वाज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंडिया।
कश्मीर के बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। अब हम हैदराबाद और मणिपुर को देखते हैं। तो देखिए, सरदार पटेल विद द निजाम ऑफ हैदराबाद, ये जो इमेज है, ये आपके सरदार पटेल है एंड ही इज द निजाम ऑफ हैदराबाद। ये सरदार पटेल के साथ इमेज है। तो हम देखते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद जो था हमारा, वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, surrounded entirely by Indian territory. Some parts of the old Hyderabad state are today part of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh. तो आज जो हैदराबाद देखते हैं ना, वो हैदराबाद नहीं है। उस टाइम पे महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एज वेल वाज प्रीवियस हैदराबाद। द रूलर कैरिड द टाइटल निजाम। निजाम टाइटल उसके रूलर ने रखा हुआ था एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। इतना पैसा था उनके पास में। The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. He entered into what was called the Standstill Agreement in India with India in the November 1947 for a year, while negotiations were Indian government were going on. तो स्टैंड एग्रीमेंट क्या है? देखिए, वर्ड को ब्रेक डाउन कीजिए, उससे समझ आएगा। स्टैंड स्टिल क्या मतलब है इसका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अगर आप साइन करते, तो मतलब था कि आप इंडियन डोमिनियन के अंदर आ रहे हैं, आप इंडिया की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट निजाम हैदराबाद क्या कि अभी हम सोच विचार कर रहे हैं इसके ऊपर, वी आर थिंकिंग अबाउट इट वेदर टू ज्वाइन इंडिया और नॉट, और वेदर टू स्टे इंडिपेंडेंट फॉर अ 1 year. And in between, the talks were going to happen between Indian representatives and the Nizam of Hyderabad. In the meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam rule gathered force. But इसी बीच क्या हुआ? हैदराबाद के लोगों की एक मूवमेंट उठने लगी। एक मूवमेंट इज गोइंग टू राइज। द पीजेंट्री इन तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर, जो आज का तेलंगाना रीजन है, उसका जो पीजेंट्री था, उसके जो पीजेंट्स थे, was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against him. इसका मतलब क्या है? निजाम एक oppressive ruler था, वो लोगों पे तानाशाही करता था। वुमेन who had seen the worst of this oppression joined the movement. वुमेन ने भी लास्ट नंबर में ज्वाइन किया। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, और हैदराबाद जो टाउन था वो नर्व सेंटर था, मतलब इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। जो कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट, और कम्युनिस्ट जो हैदराबाद कांग्रेस है, जो आईएनसी का ही एक छोटा पार्ट है स्टेट का, वो इसके फोरफ्रंट पे थे, मतलब फ्रंट से लड़ाई लड़ रहे थे। द निजाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलिशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज राजाकर्स ऑन द पीपल। तो आपके एमसीक्यू में ये भी पूछा गया है कि व्हाट वर द राजाकर्स। वो एक पैरामिलिट्री फोर्स थी हैदराबाद की। तो निजाम ने क्या करा? लोगों के ऊपर मिलिट्री फोर्स ही छोड़ दी। अब उन्होंने बिना देखे बिना सोचे समझे हजारों लोगों को मारा, बुलेट चलाई, एट्रोसिटीज करी। द एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ द राजाकर्स न्यू नो बाउंड्स। उनकी कोई बाउंड्री नहीं थी। दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप, लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम। क्योंकि निजाम एक मुस्लिम है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया होगा कि आप मुस्लिम्स को कम टारगेट करिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देना पड़ा आर्मी को कि सिचुएशन टैकल करिए आप। तो सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी वहां पे मूव हुई। उन्होंने कंट्रोल किया निजाम फोर्सेस का, और कुछ ही दिन के अंदर ये फाइट खत्म हुई और निजाम ने सरेंडर कर दिया। दिस लेड हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया, और इस तरह से हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना। एंड द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी विद द मणिपुर। नेक्स्ट इशू आपका मणिपुर। तो इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले जो महाराजा थे मणिपुर के, क्या नाम है? बोध चंद्र सिंह। इसमें जब इंग्लिश में लिख देते हैं वो इसको बनाते हैं बोधा चंद्र सिंह, बट दिस इज नॉट, दिस इज बोध चंद्र सिंह। Signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that internal autonomy of Manipur would be maintained. तो इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले महाराजा ने वहां के ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, on the very promise that Indian government will maintain the internal autonomy of Manipur। मतलब कि मणिपुर को उसके खुद के डिसीजंस लेना अलाउ होगा, वो किसी के प्रेशर में आके वो डिसीजन नहीं लेगा, वो ऑटोनॉमी उसी के पास रहेगी। Under the pressure of public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948, और जून 1948 में वहां पे इलेक्शन भी हो गई। द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, और स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया गया। मतलब वहां पे मोनार्क होगा, वहां का राजा होगा, बट वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। वो एक नॉमिनल हेड होगा। एक्चुअली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही वहां पे पॉलिसीज बनाएंगे। Thus, Manipur was the first part of India to hold election based on universal adult franchise. तो मणिपुर आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया बना जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर वोट्स कराए। याद रखिएगा, मणिपुर फर्स्ट स्टेट नहीं थी जिसने इलेक्शन करवाए थे इंडिया में इंडिपेंडेंट में, वो कोई और थी। बट इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, मतलब एवरीवन अबव 18, doesn't matter which class he belongs to, which gender he or she belongs to, which religion he or she belongs to,
Everyone above 18 is entitled to vote. This is what is known as universal adult franchise. In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of the merger of Manipur with India. While the state Congress wanted the merger, other political parties were opposed to this. The government of India succeeded in persuading the Maharaja into signing the merger agreement in September 1949. अब हम देखते हैं reorganization of states. Reorganization कैसे हुआ states का? The process of nation building does not come to an end with the partition and integration of princely states. तो ये जो आपका नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन के बाद जो इंटीग्रेशन हुआ है उससे खत्म नहीं हुआ है. अभी हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज भी करना है. मतलब जो गुजरात जो सौराष्ट्र बोलते थे वो इतना बड़ा है, क्या वो सच्ची में इतना, उसको हम इतने बड़े को एडमिनिस्टर कर पाएंगे? क्या उसकी पॉलिसीज अच्छे से बना पाएंगे? क्या उसको टैकल करना इतना आसान होगा? क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट भी है और प्लस इतना वास्ट एरिया कवर करता है. वहां पे सी रूट भी है, वहां पे आपके बीचेस हैं, वहां पे आपके पोर्ट्स हैं. उनको हैंडल कैसे करना है? तो ऐसी स्टेट के अंदर बहुत सारे इशू थे. कोई स्टेट बहुत ज्यादा छोटा है, कोई स्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है. तो उनको टैकल कैसे करें? तो उनको हमें रीऑर्गेनाइज करना होगा. कुछ स्टेट्स को छोटा करना होगा, कुछ को बड़ा करना होगा, कुछ दो स्टेट्स को मर्ज करना होगा, किसी एक स्टेट में से दो स्टेट बनाने होंगे. ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने के. The boundaries had to be drawn in a way that linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. तो हमें उस स्टेट की बाउंड्रीज ये सब ऐसे बनानी है कि उसकी जो कल्चरल प्लुरैलिटी और लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी है वो अफेक्ट ना हो. During colonial rule, state boundaries were drawn either on the administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers. तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो यही होता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्या करते थे, बाउंड्रीज को बनाते थे कि हाँ हम इतने छोटे एरिया को और इतने बड़े एरिया को इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. यही बाउंड्री बना देते हैं. डजेंट मैटर कि वो बाउंड्री एक ही घर के बीच में से जा रही है, कि आधा घर किसी और स्टेट में आ रहा है, आधा घर किसी और स्टेट में आ रहा है. उनको उससे कोई मतलब नहीं था. आर नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड दिस डिवीजन. तो हमारे नेशनल मूवमेंट में ये डिवीजन रिजेक्ट किया हुआ था पहले से as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of state. तो सबसे पहली लाइन आपकी क्या आती है? हमारे स्टेट्स के रियोर्गनाइजेशन का बेसिस क्या था? What was it? Language, religion, administrative convenience. What was it? Tell me. मैं रुक रहा हूँ 10 सेकंड, आप बताइए क्या था? Obviously it was linguistic basis. तो मुझे आप कमेंट में ये लिख के बताइए कि which was the first state to reorganize on linguistic basis. Tell me in the comments which was the first state which was reorganized on the linguistic basis. आगे हमारे आ जाएगा बट आप अभी बताइए. The next. In fact, after the Nagpur session of the Congress in 1920, the principle was reorganized on the basis of reorganization of the Indian National Congress Party itself. Many provincial Congress committees were created on the linguistic zones, which did not follow the administrative divisions of India. Things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. क्यों ऐसा उनको क्यों लगा कि if we are going to recognize the state on the linguistic basis, this could lead to a mass movement of disruption and disintegration. Why was it felt by the leaders of India? It was because of the partition. Because the partition was made on the two nation theory that Muslim and Hindus consist of India and India consists of Hindus and Muslims. So they have seen the bloodshed, they have seen the atrocities, and they were fearful that if we do the similar thing on the linguistic basis or the religion basis, the same thing is going to happen again. So they were fearful to enact upon those promises which were made by them earlier. It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. The central leadership decided to postpone matters. The need for postponement was also felt because the fate of the princely state had not been decided. तो ये भी एक रीजन था. और एक ही रीजन था कि प्रिंसली स्टेट्स का फेट ही उसे डिसाइड नहीं हुआ है. सारी प्रिंसली स्टेट अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुई है. ऐसे में हम कैसे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रिऑर्गेनाइज कर दें?
तो डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स ऑफ द पीपल। इसको चैलेंज भी किया लोकल लीडर्स ने। प्रोटेस्ट बिगिन होने लगे तमिलनाडु में और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज के अंदर, जिसको हम ओल्ड मद्रास बोलते हैं, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर, केरला, तमिल, मतलब साउथ इंडिया के अंदर आपके प्रोटेस्ट होने लग गए थे कि आप स्टेट्स को लिंग्विस्टिकली रीऑर्गेनाइज करिए। एक विशाल धारा मूवमेंट था आपका, जो क्या मूवमेंट था, जो सेपरेट करता था आंध्रा को। Demanded that Telugu speaking area should be separated from the Madras province, which were a part of made into separate Andhra province. तो उन्होंने क्या कहा कि आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो तेलुगु स्पीकिंग पार्ट है, उनको अलग करिए। Nearly all the political forces in Andhra region were in favor of the linguistic reorganization of the Madras province. The movement together momentum, ये मूवमेंट धीरे धीरे बड़ा होता गया और सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंच गया। Now the prominent name here is पोटी सिरामुल्लू। पोटी श्रीरामुल्लू, ये एक प्रोमिनेंट नेम है, ये आपको याद भी रखना है कि जब आपका रियवेलेशन ऑफ स्टेट हुआ था तब एक प्रोमिनेंट फिगर थी। ये कांग्रेस लीडर थे और एक वेटनरी गांधीयन थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनडेफिनेट फास्ट पे जाने का डिसाइड करा और इनकी डेथ हुई आफ्टर 56 डेज ऑफ नॉन ईटिंग। 56 डेज तक इन्होंने फास्ट करा, फिर इनकी डेथ हो गई। अब इस वजह से क्या हुआ, प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गए, लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इनटू वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्र रीजन। पीपल, लोग सड़कों पे उतर गए। मैनी वर इंजर्ड एंड लॉस्ट देयर लाइव्स इन द पुलिस फायरिंग के साथ में लोगों की जान भी गई, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए। Several legislatures resigned their seat in protest. Finally, the Prime Minister announced the formation of separate Andhra Pradesh in December 1952. और फाइनली ऐसे आपका फर्स्ट जो स्टेट था ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लिंग्विस्टिक बेसिस, was carved out in 1952 दिसंबर, which was called आंध्रा स्टेट। ये जो मैप आपका, ये आप देखेंगे, ये जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1961 के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन सी स्टेट थी, ये उसका मैप है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड नहीं है, यहाँ पे चंडीगढ़ नहीं है, यहाँ पे हरियाणा नहीं है, और क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे झारखंड नहीं है, यहाँ पे तेलंगाना नहीं है, इसका नाम मैसूर है, इसका नाम अभी क्या है, कर्नाटका है। इसको हम क्या बुलाते हैं, तमिलनाडु बुलाते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट में से बाद में बने हैं। The formation of Andhra spurred the struggle for making of other states linguistic lines in other parts of the country. These struggles forced the central government in appointing the State Reorganization Commission in 1953. तो नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू बनता है वो ये बनता है कि व्हेन वाज द स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। इट वाज इन 1953। स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन का काम क्या था, वो अब स्टडी करेगा और डिसाइड करेगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर आपके ये जो रिओर्गनाइजेशन है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो व्हाट विल द मेरिट ऑफ दैट एंड व्हाट विल बी द डीमेरिट ऑफ दैट। दिस ऑल विल बी स्टडीड बाय द स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ द रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब की, पहले तो उन्होंने रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हम डिफरेंट लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दिस विल नॉट लीड टू एनी कम्युनल डिसहार्मनी और अनरेस्ट। On the basis of its report, State Reorganization Act was passed in 1956. And your next PYQ is this. When was the State Reorganization Act was passed? It was in 1956. This led to the creation of 14 state and 6 union territories. So आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया था उसके अंडर कितने स्टेट्स एंड कितने यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुए थे, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। एंड दिस इज द मैप फॉर दैट। One of the most important concerns of the earlier was the demand for separate states would endanger the unity of country. स्टार्टिंग में हमारा सबसे बड़ा फियर ये था कि अगर हम एक ही इंडिया में इतने सारे स्टेट्स बना देंगे तो ये हमारी कंट्री को यूनाइट होने से इंडेंजर करेगा। It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on newly founded nation. But the leadership, under the popular pressure, finally made a choice in favor of linguistic states. It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division of separatism would be reduced. Besides, the accommodation of the regional demands of the formation of linguistic states were also seen as more democratic. So, gradually, what we saw that the demand of the formation of states on the regional basis proved more good for the country.
The people were happy that they are living in their cultural dominated, their language dominated area. This gave them a sense of ownership of their own state. Yes, this state belongs to us, this state belongs to, and we belong to the state. There was more democratic possessions of the state, and regional demands were fulfilled, so there was less unrest among the people. Now it is more than 50 years since the formation of the linguistic states. We can say that linguistic states and the movement for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some or basic ways. So above all, linguistic states underline the acceptance of the principle of diversity. When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted a format of elections. So, जब हम कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया है, इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, इट डज नॉट ओनली मीन दैट वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन और वी हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस, बट it is larger than that. What is larger than that? That it was choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional. मतलब हमने ये accept किया है that we are still united instead of having the various differences which could be sometimes oppositional as well, which could sometimes lead to unrest as well. But we still, among the various differences, various cultures, various norms, various religions, we are still united. Democracy, in other words, was associated with plurality of ideas and ways of life. We may have a plurality of ideas, we may have a lots of religion, we may have a lots of languages, but we are still united as a country, as a united nation. And this is what make India a great nation, a different nation of its kind. There is no other country in the world that caters to such a vast chunk of languages, religion, culture, ethnicity, minorities, etc. We have accommodated a whole another world in a small country itself. So this was for today. Thank you very much. Hope you like the video. Make sure to like, share, and subscribe the channel. Thank you very much.